If you ever feel demotivated, or if you're feeling like quitting, or if you're feeling that after failing you just don't want to do CA, or maybe you just don't want to study more, this episode is a perfect motivation blast for all of you. Trust me, towards the end of the podcast, even you will see literally I had tears in my eyes while I was listening to this man's story, and even you're all going to get goosebumps after watching this entire video. So this is a story of Dharamveer Singh, who was in the Indian Navy in the year 2010, and he suffered a major accident, and because of which he did not want negativity in his life. So like in order to avoid negativity in the hospital, he transitioned to CA course, and that was his main reason of choosing CA. And in the year 2021, he was able to clear his CA examinations at the age of 36, and now he has been placed in EY Kolkata, where he is going to do job in an internal audit. So this episode is going to be a pure motivation blast for each and every one of you who's feeling demotivated or who's feeling low in their lives. In case you feel motivated and inspired by his amazing story, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. So this podcast is brought to you by Tickertape Pro. Tickertape Pro is an amazing application in order to do your fundamental analysis. It has all the ratios, it has all the financial statements, be it income statement, balance sheet, or cash flow, and it also has analyst recommendations, where how many analysts are giving buy and sell recommendation, that is also given. If you want to download investor presentation or annual reports of companies, Tickertape Pro is the best platform where you can get all the annual reports and all the investor presentations in one tab itself. So make sure you download this application before doing fundamental analysis of any stock. I have personally started using Tickertape Pro and it has been amazing. So click on the link given in the description box to download the app and just start your fundamental analysis. So let's get started with this amazing and inspiring podcast. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल वंस अगेन। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति है जो पहले इंडियन नेवी में थे। उनका 2010 में एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद नेगेटिविटी अवॉइड करने के लिए उन्होंने सीए कोर्स चूज किया है और उनका जून 2021 में ही रिजल्ट आया है। इनफैक्ट जून 2021 में उन्होंने सीए क्लियर किया है। तो सबसे पहले हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस धर्मवीर सीए क्लियर करने के लिए, एंड सेकेंडली थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इन्विटेशन एंड कमिंग अप ऑन द शो। Kushal, it's being honor to be here with you so much, Kushal. थैंक यू सो मच। तो धर्मवीर, मैं आपका लिंक्डइन पे पोस्ट भी पढ़ रहा था और मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया। तो आप पहले इंडियन नेवी में थे और बाद में आपका ट्रांजिशन हुआ। तो आप पूरी ऑडियंस को बताओ कि आपका इंडियन नेवी में कैसा एक्सपीरियंस था, पहले वहां पर कैसे एंट्री हुआ आपका और वहां पर क्यों गए आप, और उसके बाद फिर हम सीए के इसमें ट्रांजिशन हो गए। तो वे लॉन्ग बैक इन 2005 मेरा इंडियन नेवी में इनरोलमेंट हुआ था और वहाँ जाने का रीज़न एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस ही था। तो मेरे डैड आर्म फोर्सेस में हैं थे उस वक्त। तो आई वाज ऑलवेज ड्रीमिंग कि मैं आर्म फोर्सेस में ही जाऊंगा। सो आई चूज इन अ नेवी एंड आई हैव गॉट इनटू द नेवी, क्योंकि हमने सिंस चाइल्डहुड हमने आई हैव सीन यूनिफॉर्म in my father's I have always seen father in my uniform, so I have chosen to go with that uniform, that जो pride होता है, जो discipline होता है, तो वो पाने के लिए हमें वो यूनिफॉर्म लेनी चाहिए। मतलब कि वो जाना ही पड़ेगा to get into that kind of discipline what my father has. So this was a reason कि मैं डिफेंस में गया, मतलब नेवी में गया। इन वे लॉन्ग बैक 2005 में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। इट्स अबाउट 1.5 years ऑफ ट्रेनिंग। सो लर्निंग तो बहुत कुछ है जो मैंने सीखा, और मैं बोलूँगा कि विद दिस लर्निंग आई हैव क्लियर्ड माय सीए। हो सकता है कि हाँ मेरा मेरा बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंट हो गया है प्रोफाइल की। मेरा जो नेवी का एक्सपीरियंस है विल नेवर बी काउंटेड इन द डिफेंस इन अ सीए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मगर ये बात है कि जो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, जो हार्डवर्क सिखाया जाता है इन आर्म फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, वो बहुत ही ज्यादा काम आया। जो डिटर्मिनेशन के साथ मेरे को स्टडीज करनी थी और जिस सिंसियरिटी के साथ स्टडीज करनी थी, वो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट जो सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन मुझे नेवी से मिला, वो मेरे बहुत ज्यादा काम आया व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ सीए। तो आपका फिर इंडियन नेवी में क्या डेजिग्नेशन था, तो आपका पोस्ट क्या था वहां पे? इंडियन नेवी में एज अ सेलर था। सेलर देयर इज एन एमआर और देयर इज एन एंट्री फॉर sailors for NMR, MR. Now it is an SSR and SR entry.
So I will be in that SSR entry, मतलब कि on basis of 10+2 basis या फिर 10th basis पे. At that time मेरे टाइम पे 10th basis पे recruitment होता था, and after 12th I have joined the Navy. So Okay. उस टाइम पे, और अब वो 12th बेसिस पे हो चुका है. जिस एंट्री पे मैं 10th बेसिस पे हुआ था, अब वो 12th बेसिस पे हो चुका है, 10+2 विद साइंस. सो नॉर्मल सेलर एंट्री थी मेरी. और जो हमारे आर्मी में हवलदार होते हैं, जो इस टाइप की डेजिग्नेशन होती है, वैसी हमारी डेजिग्नेशन थी सेलर्स. तो लीडिंग स्टोर असिस्टेंट, तो मेरा रैंक लीडिंग स्टोर असिस्टेंट था उधर. So Okay. this was my designation. गेट इट. तो आपका फिर पूरा 2005 से 2010 इंडियन नेवी में रहा होगा पूरा एक्सपीरियंस, और फिर Yes. 2010 में देन यू मेट विद अ सीवियर एक्सीडेंट. उसके बाद आपने ट्रांजिशन किया सीए में. तो आप पूरी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि क्या कैसा फेज था वो, क्या एग्जैक्टली हुआ था, और उसके बाद आपने कोप अप कैसे किया था? वो फेज 2010 सितंबर अक्टूबर का मंथ था. then I met an accident. So I was on duty मेरा एक्सीडेंट हुआ था in मुंबई. और I was posted in INHS अश्वनी. there is military hospital, वहाँ posted था. वहाँ से दूसरी जगह मेरी ड्यूटी चल रही थी, तो वहाँ attributable to service on duty. These were the accidents. So I have a 4-5 surgeries in a day. So Oh because my God. in an emergency, so मेरी बैक की सर्जरी हुई थी. there was a plate in lower back, and लेग की सर्जरी थी, वहाँ भी प्लेट्स डाले गए थे, और मेरा हाथ पे प्लास्टर था. So these were the thing, 3 surgeries in a single day. And after that भी मेरे 2-3 years में मेरे लेग्स में जो प्लेट्स थी वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई थी, तो उनके भी 2-3 बार ऑपरेशंस हुए. और बैकबोन की जो प्लेट्स थी उसको भी निकाला गया. तो ऑल द राउंड मेरे को काफी टाइम लग गया, जो टेन्योर था मेरा. फिर आपका फिर वो मतलब आपका 2-3 इयर्स का जो पूरा फेज था, आपने पूरा हॉस्पिटल में भी बहुत टाइम बिताया. तो उसके बाद हाउ डिड यू कोप अप विद दैट, मतलब हाउ डिड यू कोप अप विद दैट एक्सीडेंट? मतलब इतना नेगेटिविटी होगा वहां पे और इतना पेसिमिज्म होगा, तो आपने फिर क्या थॉट प्रोसेस था और आपके माइंड में क्या चल रहा था वहां पे? हमारी जो ट्रेनिंग वाइज एंड मेंटालिटी वाइज हमें टफ बनाया जाता है, मेंटली एंड फिजिकली, ऐसी बात नहीं है. बट थिंग इज दिस, आई एम नॉट प्रिपेयर एट दैट मोमेंट कि सडन कुछ हो जाए. तो मतलब कि आई वाज नॉट इन दैट सिचुएशन राइट नाउ. अगर मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ एंड आई एम वॉकिंग एंड रनिंग, एंड नेक्स्ट डे आफ्टर आफ्टर दैट डे आप बोलोगे कि यू नीड टू बी स्टे इन एन हॉस्पिटल इन अ बेड फॉर 6 months, और इट विल टेक सम मोर टाइम. तो थोड़ा सा दिमाग में एडवर्स इफेक्ट होता ही है. द थिंग इज दिस कि फिर थोड़ा सा टाइम लिया मैंने रिकवरी में. तो वो फेज थोड़ा सा डिसबैलेंस था मेरे लाइफ का, थोड़ा सा ब्लैक पीरियड में बोलूंगा, कि जहां मेरे को लर्निंग भी मिली, थोड़ा सा स्ट्रगल भी मिला, थोड़ा सा मेरे को इन्वायरमेंट को दूसरे देखने के नजरिए से मिला. क्योंकि आई हैव नेवर बीन इन दैट फुटस्टेप. मैंने चीजें देखी थी, मगर मैंने उस व्यू पॉइंट से नहीं देखी थी जिस टाइम पे मेरा साथ में ये इंसिडेंट हुआ. सो इन दैट हॉस्पिटल सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, जो मेरे से भी बुरे कंडीशन में है, मगर वो बहुत ठीक है. वो उनकी आई हैव नेवर सीन दैट कि वो इरिटेट हो रहे हैं किसी बात पे. वो डिपेंडेंट हैं, पर भी वो अपने आप को बहुत पॉजिटिव वे में लाइफ को लेते हैं. तो मैंने उस हॉस्पिटल में काफी दोस्त बनाए और उधर देखा. और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि देवर कैंसर पेशेंट, और उनको पता नहीं कि उनका नेक्स्ट 1 मंथ कैसा रहेगा, बिकॉज उनका नेक्स्ट 1 मंथ में शायद वो नहीं रहेंगे, मगर दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ एट द फुलेस्ट. सो उनको देखने के बाद मैंने बोला, यार इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास क्या नहीं है, जो हो गया सो हो गया. वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा अपनी लाइफ से. क्योंकि फिर मैंने ये देखा कि दे जो जिसके पास थोड़े से कम लम्हे हैं ना, उस लम्हों में बहुत अच्छा जीने की कोशिश करता है. तो वहां मेरे को लगा कि यस, आई कैन नॉट वेस्ट माई लाइफ लाइक दिस, कि सोच के कि व्हाट हैपन. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. और दूसरा, माई पेरेंट्स स्ट्रगल अ लॉट एक्चुअली. तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि एट दैट एज, 55 or 56 years of age, मैं at that time my father was, so I should support him. तो मुझे कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, rather than depending on my parents. I have to do something of myself.
तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिजिकली मैं शायद नेवी में कभी दोबारा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाऊं, तो मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा विच व्हाट इज ऑफ माय कैलिबर। शायद मैं फिजिकली ना कर पाऊं तो मेंटली तो कर सकता हूँ कुछ ना कुछ तो। सिटिंग इन अ टेबल आई कैन डू एनीथिंग। सो थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिली मुझे वहां से, मगर फिर मैंने उसको थोड़ा सा कि यार फुलेस्ट पॉसिबल थिंग करने के लिए मुझे कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जो मेरा फुल पोटेंशियल यूज करे। आई कैन डू बी कॉम, आई कैन डू एम कॉम और सम ग्रेजुएशन कोर्स, मगर वो मेरा फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते शायद मुझसे। वो डिमांड नहीं करते मुझसे पूरा जोर लगाने को। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने बोला कि एक्चुअली मैंने ये इंसिडेंट से पहले ही सीए में एडमिशन ले रखा था, अच्छा। मगर मेरे को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला था कभी भी। तो ओके। दिस इज अ टाइम आई थॉट कि मैं प्रिपरेशन कर देता हूँ, और विदाउट एनी थिंकिंग मेरे को करना था सीए, उस वक्त नहीं था डिसाइड, मगर मैंने बोला कि कर लेते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग में जितना भी जाएगा कम से कम पॉजिटिविटी आएगी अपनी लाइफ की तरफ। दिस वाज माय अप्रोच, और टाइम पासेस एंड पासेस। सो फिर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, looking at the books, looking at the course and difficulty level and the type of proficiencies they are demanding. तो मेरा थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड्स मेरा कि हाँ कि करना अच्छा होगा, और दिस इज अ गुड कैरियर टू पोजेस। फिर मैंने फिर कभी कभी पीछे मुड़ के देखना सोचा ही नहीं मैंने कभी कि क्या मैं बात है। बनूंगा नहीं सीए। ये सोचा ही नहीं कि मेरे सामने कभी कि एग्जाम देते वक्त या अटेम्प्ट देते वक्त कि मैं कभी गिव अप करूंगा, क्योंकि उस वक्त की जो लर्निंग मेरे को मिली थी गिव अप करने का, वो ही एक टाइम था मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद गिव अप कर देता, क्योंकि वहाँ काइंड ऑफ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे थे जिनको कुछ नहीं हुआ है, कुछ दे आर नॉट, मतलब दे आर हैविंग अ वेरी लेस प्रॉब्लम विद देयर हेल्थ, मगर उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि दे आर थिंकिंग दैट मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मगर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके साथ में बहुत कुछ हो गया, मगर वो दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द लाइफ कि हाँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं हैप्पी रहूंगा, पर भी जो जितना जैसी भी लाइफ है आई विल एंजॉय माई लाइफ। तो उनको देखने के बाद मेरा लाइफ का प्रति थोड़ा अप्रोच बदल गया, टोटली बदल गया। तो वो लर्निंग थी जो मेरे को शायद नेवी में रह के नहीं मिली, मगर मेरे को डिफेंस में हॉस्पिटल में रह के मेरे को थोड़ा सा देखने को मिला। क्या तो बात वो है। मेरा बहुत ही हम्म, इंस्पायरिंग है ये तो सुन के ही मतलब मुझे भी हम्म, इतना इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन पूरे मतलब एज एन हॉस्पिटल में इतना ये सब होने के बाद भी आपका जो विल पावर और ऑप्टिमिज्म था दैट रियली स्टूड आउट। एंड आई थिंक आप आज सीए बने तो वो रीजन की वजह से बने हो कि आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड जो आपने नेवी और डिफेंस में सीखा था। तो कूडोज टू यू उसके लिए और ये मेहनत के लिए। आई थिंक दैट्स वेरी मच अप्रिशिएबल। तो आपका फिर सीए जर्नी जो शुरू हुआ और आपका भी जून 2021 में एग्जाम था और तभी आपने जून 21 में क्लियर किया। तो ये जो पूरा आपका जर्नी था राइट फ्रॉम योर फाउंडेशन जो सीपीटी आईपीसीसी फाइनल का था पूरा जर्नी, तो उसमें आपको मतलब क्या सबसे चैलेंजिंग फेज लगा और आपने वो चैलेंजिंग फेज कैसे ओवरकम किया पूरे सीए की जर्नी में? सीए की जर्नी में सबसे डिफिकल्ट फेज तो मैं बोलूंगा कि सेल्फ डिसिप्लिन एक चीज रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो रखना थोड़ा सा ये होता है ना कि काफी अटेम्प्ट में इफ यू आर गिविंग 1 2 3 4 अटेम्प्ट, द प्रेशराइजिंग थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता है दिमाग में या फिर किसी और का। तो एक ओवरऑल प्रेशर तो बिल्डअप होता है कि हम जल्दी से जल्दी पास करें, मगर थिंग इज दिस कि हमें ये भी समझना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारी, अगर हम पास उस वक्त हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की है या नहीं। बिकॉज हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। इट्स अ डिफरेंट थिंग, अलग प्रोफिशिएंसी चाहते हैं वो। तो हमें उस सब्जेक्ट में ही नहीं, पूरे सभी सब्जेक्ट में 8 to 8 सब्जेक्ट्स में हमें एक लेवल पे लेके आना पड़ता है अपने आप को। तो थिंक अबाउट योर ओन पर्सपेक्टिव कि हाँ कि आपको थोड़ा सा महसूस हो जाता है कि आई एम नियर बाय सक्सेस, और आई एम surely success in 1 or 2 attempt. So keep your discipline aligned कि हाँ मुझे जब तक गिव अप नहीं करना है, दैट इज अ थिंग। और मैं बोलूंगा आर्टिकलशिप भी बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज होता है मेरी। आई एम नॉट डन सच अ ग्रेट आर्टिकलशिप। मेरे को हेल्थ कंस्ट्रेंट उस वक्त भी थे, तो मैं काफी कॉपरेट किया मेरे सीए ने, और मेरी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो नेवी में थे सब ने सब काफी सपोर्ट किया।
एक डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी जरूरी है, वो डिफिकल्ट फेज है। और मैं बोलता हूँ कि मेरा मेट होता क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली ना कभी कभी हम कम पढ़ते हैं, कभी कभी और हम उस वक्त पास हो जाते हैं। तो ऐसा, और कभी कभी हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं मगर हम पास भी नहीं हो पाते, ऐसा होता हाँ है। और इस बार जून जून अटेम्प्ट में ऐसा मेरे साथ में हुआ, क्योंकि मैं माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट और उनको जब डिलीवरी थी दैट वाज अ एग्जाम डे, मतलब कि अगर इफ द एग्जाम वुड हैपन देन द मेट 17th would be the date of my birth of my child। तो उस वक्त मेरा पूरा एक महीना गया और मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, मेरी वाइफ भी कोरोना पॉजिटिव थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो मैंने मेरा 1.5-2 months तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। आई हैव नेवर थॉट ऑफ की स्टडिंग। बट थिंग इज दिस कि मैंने पॉजिटिविटी, जितना मुझे टाइम मिलेगा आई विल डू माई बेस्ट। सो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारे सामने आर्टिकलशिप की प्रॉब्लम होती है, हमारे सामने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं आर्टिकल से रिलेटेड, बाहर की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स, मगर आपको फुलेस्ट आप 100% दे सकते हो, बस उतना ही करना है आपको। आपको उससे ज्यादा नहीं जाना है। आप अपना 100% दो, बाकी छोड़ दो कि जैसा होता है देखा जाएगा। और दिस 100% आपको रो रो के नहीं करना है। ऐसा होता है ना, लोग, मैंने बहुत बहुत लोगों से सुना है जो सीए कोर्स चूज करते हैं, कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गया। कोई कोई मेरे फ्रेंड बोलते हैं तू नेवी में अच्छा था, तू यहाँ क्यों फंस गया। मतलब कि ऐसा एटीट्यूड है कि फंसना हो जाता है, मतलब कि कैसे फंस गए यहाँ यहाँ। मतलब देखो, एक अगर आप किसी भी चीज को पनिशमेंट की तरह लोगे ना, दैट विल पेन यू। इफ यू या स्टार्ट एब्सोल्युटली लविंग योर स्टडीज, एंड सिंसियरली आप पढ़ रहे हो ना, योर अटेम्प्ट्स डजंट मैटर। आपके 10 अटेम्प्ट भी हो जाएंगे, यू enjoy in a such a way that you thought that this will be my first attempt, the या same enthusiasm you should made that। और मेरा enthusiasm कभी कम नहीं हुआ up to my last attempt। This is a dedication I want from the students to procure that कि हाँ, एक attempt हो गया, attempts मत काउंट करो, अपनी राइट प्रोफिशिएंसी काउंट करोगे तो that will be better कि हाँ मैं अपने गोल्स के पास बहुत ज्यादा करीब जा रहा हूँ। That is a more important। वंडरफुल। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस। ऐसा होता है कि लोग फेल होने के बाद उनको ऐसे लगता है कि यार अभी पूरा मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इतना डिमोटिवेशन या डिप्रेशन आ जाता है ना। इट्स लाइक कि एज इफ एक एग्जाम उनका लाइफ डिसाइड कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो मैं भी मतलब यही बोलता हूँ मेरे चैनल के थ्रू कि इवन इफ इट्स लाइक अ फेलियर इन योर वन एग्जाम और टू एग्जाम्स, द पॉइंट इज कि आपको वापस खड़े होना है। और वो हर्डल रीच जो है, उसमें ये जो एक हर्डल से आप गिर गए हो, तो वापस गिर के आप जो गिरे हो, उठ के आपको वापस फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। वो दिमाग में होना चाहिए। तो इमेजिन ऐसे करना चाहिए कि एक फिनिश लाइन है, वहां पे एक रिबन है, उस पे एक सी और ए लेटर करके लिखा है, और आपको वो फिनिश लाइन क्रॉस करनी है एट द एंड ऑफ द डे। अगर ऐसा एटीट्यूड होगा तो आई थिंक कोई भी कितने भी हर्डल्स आ जाए या कितने भी हर्डल से गिर जाए, तो कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जो मेन गोल है या मेन टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। आपकी स्टोरी तो प्योर इंस्पिरेशन है और ये प्योर एग्जाम्पल है कि कितने डिफिकल्टीज आने के बाद भी आपने सीए क्लियर किया जून 2021 में। तो अभी आपका वर्क प्रोफाइल, अभी आप क्या कर रहे हो, तो अभी आपका मेन वर्क प्रोफाइल क्या है? अभी मैं आई वाज recently placed in campus placement। I got a placement in EY ओ GDS वाओ, as a ग्रेट, associate consultant in internal audit profile। So क्या बात है। hopefully everything was fine। क्लियर हो गया, और क्लियर होने के बाद भी प्लेसमेंट भी मिल गया विद इन 1 month ओके, also। तो अभी आप So जॉब कर this रहे is हो? my profile I am currently। हाँ हाँ, 15th मेरी ज्वाइनिंग थी, 15th of November। और ओके, मेरे को हो चुके हैं ट्रेनिंग, अभी तक ट्रेनिंग ही चल रही है इन EY। सो राइट। कहाँ पे, लोकेशन सैटरडे क्या है? संडे ऑफ होता है। लोकेशन कोलकाता है। ओके, एंड कोलकाता से क्योंकि चांसेस वर ब्राइटर कि वहां से हो जाए, हमारे इतने सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। बट थिंग इज दिस, मैं आई गॉट टू नो समथिंग, मैं शेयर करना पसंद करूंगा। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यू इन बिग फोर एज वेल एज अ स्मॉल फर्म्स। हम्म, कोई 30,000 भी मेरे को देने के लिए रेडी नहीं था, और कोई ऐसे भी था जो मेरे प्रोफाइल, होता है कि कोई 30,000 40,000 भी ऑफर कर रहा था। कोई 80,000 मेरे को बिग फोर में मेरे को पर मंथ के हिसाब से भी मिल रहा है। द थिंग इज हाउ हाउ मच यू वैल्यू योरसेल्फ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम्म, सामने वाला आपको उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देगा।
वाला जो दे रहा है, सपोज मैं 30,000 में सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो आई विल नॉट सी कि हाँ मेरे को 25,000 मिल जाए या फिर 20,000 मिल जाए। आपको कैपेबिलिटी पता है, शायद आप उस एफिशिएंसी में फिट नहीं हो रहे हो, 30,000 में फिट नहीं हो रहे हो, तो डोंट रिड्यूस योर वैल्यू बेसिस ऑन दे हैव नॉट सेलेक्टेड यू। सो ऐसा मत सोचो कि आपके इतने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं या फिर आपके इतना सब कुछ हो चुका है, आप बिग फोर में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर चीज कर सकते हो। यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नेवर सी योरसेल्फ डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या फिर आपके मार्क्स कितने कम आए। तो यू आर जज्ड बाय, डोंट judge yourself by the number of attempts and how much marks you got. In the end, you are chartered accountant. You are once you are shortlisted in campus placement, you have a chance. You have equal chance as the rank holder has. But हाँ, package में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मगर don't it doesn't matter कि हाँ आपको तो proficiency मिल रही है, learning मिल रही है, that is more than enough. Right. क्या वंडरफुल बात कही आपने कि आपकी जो वैल्यू है वो खुद डिसाइड करनी चाहिए, कोई दूसरा बंदा आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता है। इट्स लाइक कि आपको पता है आपके कैपेबिलिटीज क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, तो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड योर ओन वैल्यू रादर देन एन एक्सटर्नल पार्टी डूइंग योर ओन वैल्यूएशन। तो आई थिंक ये तो बहुत बहुत बढ़िया कहा है आपने। तो अभी आपका जो जॉब भी शुरू हो जाएगा सीए में, आपने मतलब काफी वंडरफुल परफॉर्म किया, तो आपके अभी जो फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपको मतलब अभी फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में आई हैव नॉट येट डिसाइडेड कि मेरे पास में भी अभी मैंने थोड़ा सा काम किया अपने आप को। आई विल टेक सर्टेन टाइम टू हैव अ फ्यूचर गोल। सो इस एट दिस टाइम आई हैव टू हैव सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ज्यादा इंक्लाइन था। अभी मेरे पास फैमिली भी है और मॉम डैड भी हैं, फैमिली भी है, थोड़ी सी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस मैं एक पर्सनल गोल भी मैं सेट करूंगा, मगर आई विल टेक सर्टेन टाइम टू गेट सेटल्ड, टू गो थ्रू विद द फ्लो, एंड आफ्टर सम टाइम आई विल डिसाइड कि हाँ की करना आगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो गोइंग विद द फ्लो एंड टेक अ काम ब्रीथ एंड गो स्टडीली एंड कॉन्स्टेंटली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई जरूरी नहीं है कि आप रॉकेट लगा के आप जाओगे। इट्स तो आप आराम से स्टडीली थिंक करो, सोचने का टाइम लो, एंड देन यू विल डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू डू। सो आई विल टेक सम टाइम। या वेरी वेल सेड। और ये पूरी जो जर्नी थी आपकी, राइट फ्रॉम नेवी, फिर उसके बाद एक्सीडेंट, फिर उसके बाद सीए में एंटर होना, उसके बाद आर्टिकलशिप एंड क्लियर होना, पूरे जर्नी में हु वाज दैट वन रोल मॉडल हु रियली इंस्पायर्ड यू? और आपके जो भी डिफिकल्ट फेजेस थे या फिर जो भी आपका बैड टाइम था, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, तो हु वाज दैट रोल मॉडल फॉर यू? मैं थोड़े से इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं रोल मॉडल बना रहा हूँ तो किस बेसिस पे बना रहा हूँ, तो उनको भी बताना जरूरी है। तो मैं व्हेन आई मेट एन एक्सीडेंट, मैं अपनी फैमिली के साथ में बहुत कम रहा हूँ एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि 2005 से लेके 10 तक मैं ज्यादातर फैमिली में नहीं रहा। आई वाज पोस्टेड समवेयर एल्स। तो जब मैंने मेट एन एक्सीडेंट, तो उसके नेक्स्ट डे जब मैं आंखें खोली थी ऑपरेशन के बाद में, तो आई हैव सीन माय डैड एंड मॉम इन फ्रंट ऑफ मी। सो एट दैट टाइम doctor were also there, and doctor has told ki we are not sure that Dhanvir will walk or not in future, we are not sure. So जब ये उन्होंने बोला, तो मैं I have seen the face of my dad and mom, तो वो देखने के बाद मेरे को थोड़ा सा शैटर्ड हो गया, बोला कि यार ये क्या हो गया, what will be going to happen right now। मैं उनको क्योंकि मैंने उस हॉस्पिटल फेज में मैंने देखा है कि 20 ईयर्स या 25 ईयर्स यूथ होते हैं जो मिसहैप या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, मगर देयर पेरेंट्स आर 60 और 55 60, एंड दे आर ट्रीटिंग लाइक अ चाइल्ड, जैसे कि हमें बिल्कुल 5 साल के बच्चे होते हैं ना, वैसे ही स्पून फीडिंग करते हैं, एंड वी रिमेन एज अ चाइल्ड। और हमेशा एक पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि दे वांट टू सी देयर सन टू बी एन इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू बी अ फिजिकली फिट एंड यू आर इंडिपेंडेंट वॉकिंग। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यू नीड टू हैव योर ओन नेम। आपके पेरेंट्स ने आपको जो नाम दिया है वो तो है आपके पास में, मगर जब आपके नाम से आपके पेरेंट्स को जाना जाएगा, दैट इज मोस्ट प्राइड मूवमेंट की हाँ आपके नाम से आपके पेरेंट्स को जाना जा रहा है, बोले कि हाँ। तो वो चीज एक हमेशा मेरे को, इतना सब कुछ देखने के बाद, तो मेरे सामने एक ही चीज थी कि एटलीस्ट
मैं कुछ अचीव करूं या ना करूं अपनी लाइफ में, आई डोंट वांट टू बी अ प्रोफेशनली फिट और ये वो, मगर एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जब कोई जाए तो एटलीस्ट मेरे फादर को देख के बोले हाँ धर्मवीर के डैडी जा रहे हैं, वाह तो ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मेरे को रिश्तों की अहमियत जब ज्यादा मेरे को मालूम पड़ी, जब थोड़ा हॉस्पिटल में था, और एक बार मेरे को एक थोड़ा सा इंसिडेंट मेरे को हमेशा फ्लैश कर जाता है, एक दो इंसिडेंट जो मेरे दिमाग में हमेशा रन करते रहते हैं। एक बार मैं वॉकर से चल रहा था, ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था चलने की, एंड देयर वाज अ बेड्स थे साइड में, और भी लोग थे, माय डैड वाज थोड़े से दूर डिस्टेंस में, वो किसी से बात कर रहे थे। तो मैं जब वॉकर से चल रहा था, मैं थोड़ा सा लड़खड़ाया था, तो थोड़ा सा लड़खड़ाया, मैं थोड़ा सा ऐसी डिसबैलेंस हुआ था, और मैंने जो रिएक्शन देखा मेरे अपने डैड से कि डैड भाग के आए थे उस वक्त, और बाकी सब भी मेरे साइड में थे, बट दे वर लुकिंग एट मी। तो वो रिएक्शन को कभी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया कि मेरे डैडी इतने केयर करते हैं, और इतना पेरेंट्स इतना केयर करते हैं कि क्या वो बात है। इतना भी, इतनी वो कहीं भी खड़े हो, मगर हम नजर नजर बिल्कुल हम पे ही थी, और वो देख रहे थे कि क्या है कैसा है, और उसी वक्त वो भाग के उसी वक्त मेरे सामने ही थे जिस तरह मैं गिरने वाला था। तो वो मैं मोमेंट कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं पाया। और एक और इंसिडेंट मेरे को थोड़ा सा याद है, जब मैं आईपीसीसी की थोड़ी एक दो दिन बीच में क्लासेस मैंने ली थी, पलवल में, यहाँ से होडल से पलवल हाफ एन आवर 45 मिनट्स का डिस्टेंस है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, मैंने बोला डैडी आई डोंट वांट टू मिस द क्लास। बोला बारिश हो रही है कैसे जाएंगे? बोला मेरे को नहीं पता मगर मुझे जाना है। तो आई डोंट हैव अ फोर व्हीलर एट दैट टाइम एट माय होम, तो टू व्हीलर ही था। डैड ने वॉकर पीछे रखा, मैं भी पीछे बैठा और चले गए बारिश बाप में। रे। और जब मैं क्लास के अंदर था ना, तो मेरे टीचर भी पढ़ा रहे थे, सर थे, वो सीए नीरज मित्तल जो पलवल में पढ़ाते हैं, वो पढ़ा रहे थे, और मैं अंदर था एसी रूम में आराम से बैठा था, और मेरे डैड बाहर बारिश हो रही थी और वहां भीग रहे थे। तो मुझे भी बाप थोड़ा रे। सा लगा कि, और सर ने बोला कि क्या तुम पे ऑफ करोगे, कि देख रहे हो तुम, अगर तुम सही में देख रहे हो तो तुम करना पड़ेगा, मतलब कि जो इतना मेहनत कर रहा है, शायद तुम्हें तो कुछ मिल रहा होगा, शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है जो शायद तुम्हारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। तो हमेशा मेरे को किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखता हूँ या फिर अपने लव्ड वंस की तरफ देखता हूँ, द काइंड ऑफ लव एंड द केयरिंग एंड सपोर्ट दे हैव, सो मुझे उनकी तरफ देखने के बाद कोई मोटिवेशन, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उनको देख के मैं खुद ही मोटिवेट हो जाता, तो और मेरे को कभी भी किसी रात, किसी दिन, किसी टाइम पे मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरे को लगा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पे ऑफ कर रहा हूँ, वॉट दे हैव डन फॉर मी। एटलीस्ट मैं इतना तो कर सकता हूँ कि अपनी नींदें खराब करके पढ़ सकता हूँ, कुछ नहीं, ये तो कर सकता हूँ, सीए की डिग्री ले सकता हूँ, उनके लिए इतनी मेहनत की है। तो माय पेरेंट्स वर माय रोल मॉडल। और जब ये चीज काउंट करता हूँ ना, क्योंकि जब डैडी बोल सकते थे तू मत जा, मैंने जिद की गए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत बनती है यार कि मैं अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहूं। मुझे क्या मुझे बात है। एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मैं दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरे को रातों में नींद नहीं आ पाती जब मैं सोचता हूँ कि हाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे डिसऑनेस्ट हो सकता हूँ। तो ये चीज थी जो मैं बैक ऑफ द माइंड चली और मोटिवेट करती रही मेरे को ऑल थ्रू आउट द जर्नी। और क्या ये बात है। चीज मेरे को बहुत बहुत बढ़िया, मतलब इनफैक्ट मुझे भी मतलब एकदम ऐसे गूजबम्स आ रहे हैं अभी लिटरली ये सब सुनने के बाद। बहुत इंस्पायरिंग है ये तो। आपको मतलब आपके डैड अभी इतने सुपर प्राउड हो गए कि आपने लिटरली इतना उनको अचीव करके दिखाया है, और आज उनको मतलब पूरा आपके जितने भी मेहनत था उनकी भी मेहनत पूरी सफल हुई है। तो कंग्रेचुलेशंस आपको भी, आपके डैड को भी। और मतलब इंडीड ये सबके लिए एक लेसन है कि पेरेंट्स जो है उनका लव जो है वो पूरा मतलब इतना ज्यादा रहता है कि वो वैल्यू मतलब वो ये नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते वो लव को। इट्स लाइक अनकाउंटेबल, इट्स लाइक इनवैल्यूएबल। तो ये वही है कि मतलब हमारा भी एक फर्ज बनता है कि उनको एक रिटर्न में कुछ देना चाहिए, ताकि उनको भी गर्व लगे, उनको भी ऐसे फीलिंग आए कि यार मेरा बेटा अब उसने कुछ अचीव किया है लाइफ में। मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ इनफैक्ट कि आप अगर कहाँ पे जा रहे हो तो आपके पेरेंट्स के नाम से आपको नहीं पहचानना चाहिए। इनफैक्ट आप अगर कोई स्ट्रीट, आपके पेरेंट्स और आप अगर कोई स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हो तो आपके नाम से आपके पेरेंट्स को पहचानना चाहिए, तभी आपने सक्सेस पाई है। मैं ये बोलता हूँ यूजुअली, जो आपने भी अभी कहा।
तो वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच धर्मवीर, आपके टाइम के लिए। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इतनी इंस्पिरेशन मिली है, पूरी ऑडियंस को भी मिलने वाली है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ऑल द बेस्ट। और आपका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आई थिंक वो पूरे ऑडियंस में इम्बाइब होना चाहिए, एंड दैट इज अ थिंग व्हिच वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम यू। सो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग एवरीवन इंक्लूडिंग मी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू कुशल, आई लव शेयरिंग माय फीलिंग्स, क्योंकि बहुत मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, नो नो बट नो, in fact no, that's completely understandable. Even I understand that, लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करके। thank you so much for giving me a platform to share my feelings. Thank you so much. Yeah, thank you very much, all the best.